then the students will. So it is chapter 10, light. Reflection means light when fall on a surface is reflected back into the same medium. We say reflection has taken place. Refraction, when light travels from one medium to another, it bends from its original path. This phenomena is refraction. Bending means refraction, and bouncing means bouncing in same medium, going back in same medium is known as reflection. Terms related to refraction of the light. Few terms we will be already knowing that few rays will be there if we want to see refraction and reflection. Incident ray, reflected ray, normal ray, angle of incidence. These are the general terms which we know. Term related to diffraction are angle of reflection, angle of refraction it should be. Okay, angle of refraction, object, it is the thing that forms the image. And image, it's the reflection of the object on the screen. Virtual, when it cannot be obtained on the screen. Virtual image, when it can be obtained, it is a real image. Reflection laws, I angle is equal to angle R. That is the first law. Angle I is equal to angle R. And all these three rays are in the same plane. This is the second law. Now next, properties of image formed by the plane mirror. It is out of the syllabus, but we should just know that plane mirror is also forming a virtual and erect image of the same size of the object and the same distance from where the object is kept. And it is laterally inverted, means left appears right in it. Spherical and concave mirrors. Spherical mirrors, that is reflecting surface is curved inward, is spherical. Concave mirror, convex. Spherical mirror, reflecting surface curved outward, is convex. There are some important terms to be explained about the mirror: center of curvature, focus, principal axis, pole, focal length, radius of curvature. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर जिससे मिरर बना है, उसका सेंटर ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है. रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी है. पोल सेंटर है मिरर का. प्रिंसिपल एक्सिस स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर से पास हो रही है. कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर. फोकस एंड फोकल लेंथ स्फेरिकल मिरर्स की. प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का वो पॉइंट है जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, जहां पर सारी पैरेलल रेज आकर कन्वर्ज होती हैं एक पॉइंट पे, वो प्रिंसिपल फोकस कहलाता है. कॉन्वेक्स मिरर का वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे जहां से सारी पॉइंट, जिस पॉइंट से सारी रेज, पैरेलल रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर. So that is a focus of the convex mirror. Focal length of spherical mirror, distance between the pole and the principal focus. Focus point और pole के बीच की दूरी क्या है? Radius of curvature है. Rules reflection के light through the spherical mirrors. If it in concave mirror, a ray of light parallel to the axis after reflection will pass through the focus. यानी प्रिंसिपल एक्सिस से जो रे पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी? फोकस से पास होती है, ये बोल रहा है. जो स्फेरिकल मिरर पे पैरेलल आ रही है वो फोकस से रिफ्लेक्ट होती हुई दिखेगी. A ray passing through the focus of a concave mirror, reflection will emerge parallel to the principal axis. Rules for reflection of light through a spherical mirror: ray passing through the center of the curvature after reflection reflected back along the same path. सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो वो सेम पाथ पे जाएगी. रे इंसिडेंट ओब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स ऑन द स्फेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टेड बैक ओब्लिकली. पोल पे जो आएगी जितने एंगल से उतने ही एंगल से वापस जाएगी. ये सब हम रूल्स क्लास में पढ़ चुके हैं, बस जस्ट हम एक रिवीजन कर रहे हैं क्विक. वी कैन प्लेस ऑब्जेक्ट एट 6 पोजीशंस. इंफिनिटी, फिर उससे पहले लाएंगे तो बियॉन्ड सी, फिर एट सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, एंड फिर between F and P, at F and F and P. So at infinity, beyond C, at C, between C and F, at F, and then between F and P. Yes, 6
पोजीशंस हैं, डिफरेंट टाइप्स की ऑब्जेक्ट जब रखे हुए हैं डिफरेंट पोजीशन पे, तो इमेज कहाँ बनेगी वो यहाँ दिखा रखा है। इन्फिनिटी पे सारी रेज पैरेलल आएंगी तो वो फोकस पे पॉइंट साइज इमेज बनाएंगी। बियॉन्ड सी अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो सी और एफ के बीच में बनेगी स्मॉल इमेज, एंड एट सी रखा हुआ है तो एट सी ही बनेगी। बिटवीन एफ एंड सी रखा हुआ है तो बियॉन्ड सी बनेगी और इन लार्ज मैग्नीफाइड बनेगी। एंड एट एफ रखा है तो इंफिनिटी पे बनेगी हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी इंफिनिटी पे। एंड एक ही पोजीशन है जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट होता है तब वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। एक ही पोजीशन है कॉनकेव मिरर की। ये टेबल आपको याद होना चाहिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर यूज करते हैं हम शेविंग के लिए, टॉर्चेस में भी होता है, हेडलाइट्स में भी होता है व्हीकल के। यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू गेट लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट्स टीथ। टीथ की ज्यादा बड़ी इमेज कॉनकेव मिरर से बना के वो देखते हैं। आप देख रहे हो डायग्राम में कैसे वो यूज कर रहा है। कार की हेडलाइट आपको दिख रही है, ठीक है, टॉर्च की लाइट आपको दिख रही है, एंड देन नहीं, रोड पे एक कॉनकेव मिरर लगा, उसकी पैरेलल बीम्स आपको दिख रही हैं। एंड उधर माउथ में डेंटिस्ट ने कॉनकेव मिरर लगा के, आप देख रहे हो दांत के अंदर के सरफेस का बड़ा इमेज उसे दिख रहा है। तो डेंटिस्ट इस तरह से भी यूज करते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर्स, इमेज फॉर्म्ड बाय वर्चुअली बिहाइंड द मिरर एट एफ। अगर इंफिनिटी से रेज आ रही है कॉन्वेक्स पे तो पैरेलल रेज आएंगी और वो डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी। फोकस है तो फोकस पे इमेज बनेगी, बिहाइंड द वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी फोकस पे। जब इंफिनिटी और पोल के बीच में रखा होगा तब वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में डिमिनिश्ड बनेगी। यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर की क्या यूज है व्हीकल्स में? एज अ रियर व्यू इमेज टू सी द ट्रांसपोर्ट बिहाइंड, जो हमारा साइड में ट्रांसपोर्ट चल रहा है उसको देखने के लिए कार के मिरर्स में कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है। यूज एज अ डिवाइस टू चेक थेफ्ट्स, शॉप में कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं ताकि चोरी पकड़ी जा सके, क्योंकि उसमें मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बनती है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ऑब्जेक्ट को लेफ्ट पे मिरर के रखा है और पोल को लिया गया है एज अ रेफरेंस पॉइंट, तो डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन, ओरिजिन के यानी पोल के राइट पे जो भी डिस्टेंस लिए जाएंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस में उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, एंड जो पोल के दूसरी तरफ लिए जाएंगे अपोजिट तरफ उन्हें नेगेटिव लिया जाएगा। तो डिस्टेंस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ऊपर की तरफ जो डिस्टेंस लिए जाएंगे उन्हें पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे की तरफ प्रिंसिपल एक्सिस के डाउन में नेगेटिव लिया जाएगा। लाइट की डायरेक्शन में लेफ्ट टू राइट कोई डिस्टेंस लिया जाएगा तो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर इमेज बन रही है जहां पर बैकवर्ड डायरेक्शन में हम वो डिस्टेंस नाप रहे हैं तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। मिरर फॉर्मूला 1/b+1/u=1/f। इसमें पॉजिटिव साइन लगता है कॉन्वेक्स मिरर में, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन किस मिरर में हमें क्या चीज नेगेटिव लेनी होती है हमेशा। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जब भी हम न्यूमेरिकल कैलकुलेट कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर में यू नेगेटिव होगा हमेशा। वी यानी इमेज डिस्टेंस कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव होगा। जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स के लिए स्पेशली एक ही चीज यू नेगेटिव होता है, बाकी दोनों पॉजिटिव होते हैं, फोकल लेंथ एंड वी। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होता है कॉन्वेक्स मिरर में और इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है। कॉनकेव मिरर में नेगेटिव होता है यू और वी पॉजिटिव होती है। नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कहाँ रखा हुआ था ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक जगह आपका सेम साइड पर बनेगा कॉनकेव में वर्चुअल डायरेक्ट जो इमेज बनेगी वो आपकी नेगेटिव बनेगी। तो इसीलिए एक जगह तो आपका नेगेटिव आएगा, बाकी जगह एक जगह आपका
पॉजिटिव आएगा, बाकी जगह नेगेटिव ही होगा क्योंकि बाकी जगह सारी इमेज क्या बनती है, रियल और इन्वर्टेड बनती है। एफ नेगेटिव रहेगा कॉनकेव में। तो आप इसको क्या कर सकते हो, मिरर्स के लिए आप इस टेबल को या तो नोट कर सकते हो या इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि आपको कौन सा मिरर होगा तो आपको क्या चीज, साइन साइन कौन सा लेना है आपको, वी का साइन क्या लेना है, यू का साइन क्या लेना है, कौन से मिरर में। हैव यू डन, हैव यू नोटेड डाउन? उधम, सत्यम, note down this table, it's important. Aryan. Done. Okay. Now we will learn about the chapter 10, refraction. Reflection हमने रिवाइज किया अभी तक, अब हम रिफ्रैक्शन पे आते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल्स दी हुई हैं, उसमें अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है। And you from note that from the table you can note optically denser medium may not possess a greater mass or density. Kerosene oil का higher refractive index है optically denser than water. Oil is denser optically than the water. कल हम एक क्वेश्चन कर रहे थे कि मतलब ऑयल, वाटर और ग्लास में सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी होगी तो सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था, तो पहले वाटर का आएगा, फिर ऑयल का आएगा, फिर ग्लास का आएगा। ठीक है। रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, ये दोनों लेंसेज हैं, दो लेंस विच इज सेंटर, विच इज bulging from the center or broader from the center is the convex lens, and the lens which is curved inward and which is thinner in the middle, जो बीच में से पतला होता है, which is thinner in the middle and broader at the ends is concave, and which is thicker at the middle, middle में थोड़ा it is thicker and ends पे thinner, तो वो कॉन्वेक्स होता है। ऊपर वाले में देख रहे हैं जितनी भी पैरेलल रेज आ रही हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे आके फोकस हुई हैं, तो ये सारी पैरेलल रेज को कन्वर्ज करता है, इसलिए इसे कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और नीचे सारी पैरेलल रेज आकर डाइवर्ज हो रही हैं, तो ये डाइवर्ज करता है फोकस से, तो इस तरफ इसका फोकस है, इस फोकस पॉइंट से ये सारी रेज को डाइवर्ज कर देता है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट, वी कॉल्ड इट डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज कर दी ना इसने सारी पैरेलल रेज, एंड किस पॉइंट से करी है, फोकस पॉइंट से डाइवर्ज करी है, तो दैट इज अ डाइवर्जिंग लेंस कॉनकेव। यहाँ पर भी यही रीजन दिया हुआ है, कैन यू सी, you can read, any one of you can read, this is like reading your chapter. A transparent medium, लेंस की डेफिनेशन भी दी हुई है, ट्रांसपेरेंट मीडियम bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens.
ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसमें दो सरफेस हैं, जिसमें दो सरफेस हैं और जिसमें दोनों सरफेस ही स्फेरिकल हो सकती हैं शेप में, तो उससे जुड़कर जो स्ट्रक्चर बनता है उसे लेंस बोलते हैं. In such lenses, this means lens is bounded by at least one spherical surface. In such lenses, other can be plane. Plano-convex भी हो सकता है. एक साइड प्लेन सरफेस है और दूसरी साइड आपका कर्व है, स्फेरिकल सरफेस है, तो ऐसा भी लेंस हो सकता है. और डबल कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों तरफ से स्फेरिकल, डबल कॉन्वेक्स. एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिससे लाइट रिफ्रैक्ट होती है. अगर लेंस की दोनों सरफेसेस बाहर की तरफ आ रही हैं, बल जो रही हैं, तो ऐसे लेंस को डबल कॉन्वेक्स बोला जाएगा. अगर सिंपली कॉन्वेक्स कहना है, सिंपली कॉन्वेक्स भी कह सकते हैं इसको, डबल कॉन्वेक्स को. इट इज थिकर इन द मिडल, वो थिकर होता है मिडल पे और एजिस पे पतला होता है. कॉन्वेक्स कन्वर्ज लाइट, लाइट रेस को कन्वर्ज कर देता है एक पॉइंट पे. हेंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज. कैन यू फाइंड all the meanings why we are saying convex lens convex, why we are saying them converging lens? Such things come in 1 mark, 2 mark questions. Is it clear to everyone? Yes, ma'am. Okay. Similarly, a double convex concave lens is bounded by two spherical surface curved inward. कॉनकेव लेंस भी दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होगा जो कि अंदर की तरफ कर्व हो रही है, और ये थिन, मिडल से थिन होगा. कॉनकेव लेंस इज थिनर इन द मिडल and thicker at the edges. Such lens diverges the light rays. ऐसा लेंस लाइट रेस को डाइवर्ज करता है. And such lenses are called diverging lenses. Double concave lens simply called a concave lens. Double concave को भी concave lens बोल सकते हैं. तो यहाँ आपको डायग्राम में भी दिखा रखा है. This is one diagram of concave, convex, and lower one is of concave. B, diverging action of concave lens, and A figure is showing converging action of convex lens. So we have read paragraph 1, and now you may read, any one student of you can read this paragraph, second paragraph. We are understanding from NCERT language about the lenses. So any one student of the class, it's like reading is going on of the chapter. So who can read? Anyone can? May I? Yes, you read. Rishika. A lens either a convex lens or a concave lens has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a path of sphere. The center of these spheres are called center of curvature of the lens. The center of curvature of a lens is usually represented by the letter C. Since there are two centers of curvature, we may represent them as C1 and C2. An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called principal axis. So The center point of two definitions are given here. Number one definition is of center of curvature. The second definition is of principal axis. They are saying that a lens is having two spherical surfaces. So each surface will be formed of a part of a sphere. This is common sense.
कि दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक इधर की तरफ से है और एक इधर की तरफ से है, तो दोनों के इस वाले पार्ट का भी सेंटर इस तरफ आएगा एंड इस वाले पार्ट का दूसरे पार्ट का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो इस तरफ आएगा। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे दोनों स्फेरिकल सरफेस के एंड इनसे दोनों से जुड़ी हुई C1 एंड C2, इनसे जुड़ी हुई क्या रहेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो मिडल से पास करेगी लेंस के, उसको प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन होगी। क्लियर? दोनों डेफिनेशन Yes, समझ ma'am. गई? Yes, ma'am. इट इज, अब आगे पढ़ना है, इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। O से ऑप्टिकल सेंटर को हम रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। ये थर्ड डेफिनेशन जो दी हुई है यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट बाद, सेंटर पॉइंट ऑफ द लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। और कौन से लेटर से शो करते हैं? O से। कैन यू सी इन द डायग्राम? जस्ट फोकस ऑन द डायग्राम हेयर। ये जो आपको डाइवर्जिंग लेंस का डायग्राम देख देख रहे हो, सेंटर में क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर लिखा हुआ है सेंटर में? Oh, ओ, दैट मीन्स इट इज अ ऑप्टिकल सेंटर। center. इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर O। आगे पढ़ना है आपको। हु विल रीड? एनीवन एल्स कैन रीड आफ्टर यशिका? अ रे ऑफ लाइट यहां से पढ़ना है बेटा। रीड इट। मैम मैं पढ़ूं मैम। आप पढ़ो। A ray of light through the optical center of a lens pass without suffering any division. The effective diameter of the circular outline of a spherical lens is called its aperture. एपर्चर। We एपर्चर। aperture तो एक रे ऑफ aperture. लाइट जो है ऑप्टिकल सेंटर से कभी भी पास करेगी, यानी कि मिडल से जब पास करेगी, अभी हमने देखा किसी भी लेंस का मिड पॉइंट उसका ऑप्टिकल सेंटर है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस O से पास कर रही है ऐसे, तो वो स्ट्रेट ही जाएगी, उसका कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, चाहे वो ऐसे पड़ रही हो इसके ऊपर, किसी भी एंगल से आ रही हो वो स्ट्रेट जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, विदाउट सफरिंग एनी डिविएशन। इफेक्टिव डायमीटर, इस लेंस का जो इफेक्टिव डायमीटर होता है, यानी कि इसके दोनों टेंथ से, बस अब तो ओवर भी होने वाली। बच्चों को बुला लेगा हॉस्टल वालों मैंने तूने कल ही बोल दिया था फर्स्ट पीरियड में डेली आना, आज आ ही नहीं। सब आए बच्चे उनको सभी जितना चलेगा आपको यहाँ भेज दो उनको। मैं कल कल बोला था मैंने। तो यहाँ पर आपका इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। We shall confine our discussion chapter to the such lenses whose aperture is much less than the radius of curvature and the two centers of curvature are equidistant from optical center। दो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों कहाँ पर हैं? इक्विडिस्टेंस पे ऑप्टिकल सेंटर से। दोनों ही सेंटर ऑफ कर्वेचर है C1 और C2, दोनों की ही क्या होगी? सेम डिस्टेंस होगा ऑप्टिकल सेंटर से। और हम ऐसे लेंसेज को डिस्कस करेंगे जिसका अपर्चर छोटा है, मतलब हमारे लेंसेज बड़े नहीं हैं, हमारे लेंसेज छोटे हैं, जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैप्टर में, या आप न्यूमेरिकल्स भी देखोगे। अपर्चर का मतलब डायमीटर है, यानी कि इसके एंड पॉइंट, लेंस के एंड पॉइंट को जब मैं जोड़ दूंगी तो ये वाला जो पूरा आपका लेंथ होता है लेंस का, जो आपका ये सरफेस है जहां से आप रिफ्रैक्शन हो सकता है, पूरे सरफेस। ठीक है, ये कर्व्ड मैम सरफेस एक बार और ये कर्व्ड सरफेस जो है ये अपर्चर कहलाती है। मैम एक बार दोबारा बताना aperture.
बेटा सर्कुलर आउटलाइन, सरकमफ्रेंस, ये सर्कल का पार्ट, ये स्फेरिकल सर्कल का लेंथ, और ये वाली स्फेरिकल सरफेस का लेंथ, जहां से रिफ्रैक्शन हो सकती है, जहां से अगर कहीं पे भी लाइट रे पड़ेगी तो रिफ्रैक्शन होगी, किसी भी एंगल पे पड़े, ये वाला सरफेस, ये और ये कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, क्लियर हुआ? इज इट क्लियर अपर्चर?